So today we are going to see MSQ questions of CET 2022 paper. We have already completed the NET part and the MCQ parts. If you have not visited that, go through those videos. So question number 9 is a virus has two variants P and Q, two treatments L and M were developed against variant P and Q and tested through 4 independent trials. The table shows the results assuming that both the variants are equally prevalent and both the treatments cost the same, but a given patient can be treated with only one treatment. Which of the options is or are true? So here two variants are given, variant P and variant Q of the virus, and in this part treatments are given, treatment L and treatment M, right? If the 50 patients are there, so 44 are success in treatment L against the variant P, and in variant Q 81 success are there in 100. So first what we will do, we will see the out of 50 how many success are there in all of them, right? So out of 100 it is 80, so out of 50 it will be 40.1, and it out of 50 it will be 47, right, for treatment M. So they have provided 4 options and you have to tell which of the options are true, because it is MSQ questions, so here more than one options can be correct. So if the patient is known to be infected by variant P, both the treatments will be equally effective. So they are saying that if the patient is affected by variant P, then both the treatments will be equally effective. That is not true. इसमें आप देख पा रहे हो कि 44 success are there, but in treatment M 47 success are there. So these are not equally effective. Both the treatments are not equally effective. जो सेकेंड वाला ट्रीटमेंट M है, that is much more effective than the treatment L. So A is not correct. Then we come to option B. If we can determine that the patient is infected by variant Q, treatment L has a higher chance of success. Q के बारे में बोला जा रहा है कि अगर द पेशेंट इज अफेक्टेड बाय द वेरिएंट Q, जो L का जो ट्रीटमेंट है दैट हैज़ द हायर चांसेस ऑफ सक्सेस. दैट इज ट्रू. अगर आप देखो यहाँ पे, सो 31 सक्सेस हो रहे हैं आउट ऑफ 50, एंड ट्रीटमेंट L अगर दिया जाता है Q वेरिएंट के लिए तो 40.1 सक्सेस आर देयर, है ना. 10 सक्सेसेस बढ़ जा रहे हैं, right? So option B is correct. Then in option C, if the variant that the patient is infected by is not known, then both the treatments can be equally effective. इसमें बोला जा रहा है कि if the patient is infected, पता नहीं है P से infected है या फिर Q से infected है, then both the treatments can be equally effective. That is not true. Why? Because अगर वो P से infected होता है, राइट, सो ट्रीटमेंट M ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बट अगर Q से इन्फेक्टेड होता है तो L ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो सेम नहीं होगा वो, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट C इज नॉट करेक्ट. इफ अ हॉस्पिटल कैन स्टॉक only one of the two treatments, they should stock treatment L. बोला जा रहा है कि अगर if the hospital have to stock the treatments, मतलब अगर L को स्टॉक करना है, एक तरह का ही ट्रीटमेंट दे कैन प्रोवाइड. सो अगर उनको स्टॉक करना है तो वो L को स्टॉक करेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर M के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि डिफरेंस किस में ज़्यादा आ रहा है. लाइक इन ट्रीटमेंट M की बात करें अगर हम, राइट, ट्रीटमेंट M की बात करते हैं तो आउट ऑफ 50 47 सक्सेस आर देयर, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं. सिर्फ 3 जो है अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, 47 सक्सेसफुल हो रहे हैं. बट अगर अगेंस्ट वेरिएंट Q की बात करें सो 31 विच इज़ वेरी लेस, राइट. यानी कि 47 और 31 का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना. डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर पेशेंट Q आता है तो उसके अनसक्सेसफुल होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं,
राइट। m है तो फिर सॉरी p के लिए आता है तब तो ठीक है, 47 है आउट ऑफ 50, है ना। लेकिन अगर q आता है सो उसके लिए काफ़ी कम पड़ जाएगा, काफ़ी कम चांसेस हैं उसको सक्सेसफुल होने के लिए। बट इन ट्रीटमेंट एल की बात करें सो दोनों में ठीक ठीक चांसेस हैं। आउट ऑफ 50 44 सक्सेसफुल आर देयर एंड आउट ऑफ 50 41 40.1, सो दैट मीन्स डिफरेंस इज वेरी लेस, राइट, डिफरेंस इज वेरी लेस। सो इस पे डिपेंड नहीं करता है अब हमारे पास कि पी का वेरिएंट का पेशेंट आ रहा है या फिर क्यू का आ रहा है, दोनों में आएंगे तो दोनों के हमारे पास जो चांसेस हैं उसको सक्सेसफुल होने के वो बढ़ जाते हैं, राइट। सो इन दिस केस एल इज द बेटर ऑप्शन फॉर स्टॉकिंग, राइट। सो डी आपका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, राइट। सो मे बी ये जो क्वेश्चन है लेंदी लग रहा है बट इट इज़ नॉट दैट टफ। अब आपको बस जो है प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है, यू हैव टू रीड आउट द ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू mark the answers, right? So next question is, figure shows the plan of a one-way road passing next to a primary school. So this is primary school. Which of the options can be the locations to set up the bus stop for the school bus in the Indian context? यहाँ पे ये वर्ड क्यों दिया गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज हमारे यहाँ पे वी ड्राइव टू इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो अगर, और ये वन वे रोड दिया हुआ है, ये टू वे रोड नहीं है। अगर वन वे रोड है सो आपकी जो बस होगी वो इसी डायरेक्शन में चलेगी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलेगी। तो चांसेस नहीं है यहाँ पे, बस जब इधर से जानी ही नहीं है तो ए और बी ऑप्शन तो पहले ही चला गया, है ना, ए और बी ऑप्शन चला गया, क्योंकि मे बी आप इधर को पॉसिबल नहीं है जाना, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम जाएंगे। सो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है दैट इज सी एंड डी। सी एंड डी की अगर हम बात करते हैं, राइट, सो सी ऑप्शन में अगर हम आएंगे सो यहाँ पे बस यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती, राइट, मतलब सी बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर में, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी होता तब भी पॉसिबल होता, बट यहाँ पे बस नहीं खड़ी हो सकती बिकॉज दिस इज द रोड, राइट, और ये यहाँ से व्हीकल्स जा रहे होंगे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे बस स्टैंड पॉसिबल है, राइट। सो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर द बस स्टॉप इज द ऑप्शन डी। सो इसमें आप देख पा रहे हो कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि MSQ है, स्टिल एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, राइट। Question number 11 says, mobile sculptures are created by tying fish-shaped cutouts of the different colors using blue strings on brown sticks of negligible weight, as shown below. All the fish cutouts are of the same size and weight. Which of the options will remain balanced after suspending from the ceiling? So fish cutouts are given, negligible weights of this strings are given, blue strings are there given which are of the negligible weight. So this is important, है ना, ये important है। सर वेट आपका फिशेस का है, so which of the options remain balanced after suspending from the ceiling? बैलेंस कब होगा? जब दोनों साइड वेट इक्वल होगा, यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके राइट हैंड साइड पे आपका वेट इक्वल होगा, राइट। सो उसको कैसे हम चेक करेंगे? उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि दिस इज माई सेंटर पॉइंट। सो आपको ईजिली पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज ओनली वन फिश और राइट हैंड साइड पे देयर आर 4 फिशेज, राइट। सो ये ऑप्शन पहले ही हमारा हट जाता है, राइट। नेक्स्ट में आते हैं, तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, सो दिस इज माई पॉइंट, राइट, ये हमारा सेंट्रल लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 2 फिशेज, इसके राइट हैंड साइड में देयर आर 2 फिशेज, एंड अगर और आप बेटर वे में देखना चाहो तो ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसके एंड पॉइंट पे और इसके एंड पॉइंट पे डिस्टेंसेस भी सेम होने चाहिए, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। एक तो सेंटर पे आपका लाइन पे ही फिश आ गया, तो ये किसी साइड पे वेट नहीं जाएगा, इसका सेंटर पे रहेगा, बट 2 फिशेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 फिशेज ऑन द राइट हैंड साइड, जिसका जो वेट है एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, राइट। ओके, इन द ऑप्शन सी अगर हम देखें यहाँ पे,
सो आप इजीली देख पा रहे हो, यस, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि सी ऑप्शन में भी क्या प्रॉब्लम है विद दिस पार्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, राइट। ऑप्शन डी में अगर हम आते हैं, so I can easily see, यहाँ पे अगर हम मैच करेंगे तो डिस्टेंसेस सेम है, राइट, और नंबर ऑफ फिशेस भी सेम है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका लाइन है ये इस पे मैच नहीं कर रहा है, राइट, ये सेंटर पे आना चाहिए, ये मिडिल वाली लाइन पे आना चाहिए, तो ओनली देन इट इज पॉसिबल टू बैलेंस, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर 3 फिशेस और राइट हैंड साइड में देयर आर 2 फिशेस। सो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है और डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 2 फिशेस, राइट हैंड साइड में 2 फिशेस और एक आपका सेंटर पे है जो कि आपको वो बैलेंस कर देगा, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। Which of the graphs shown below represents the equation xy is equals to 25? So xy is equals to 25 कब possible है? ये सारे आपने ग्राफ्स देखे भी होंगे। So xy is possible, xy is equals to 25 is possible if I assume certain numbers, for example x is equals to 5 and y is equals to 5, है ना। तो अब हम चेक करेंगे x 5 पे y 5 कहाँ पे आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 5 आपका करीब यहाँ पे होगा और ये देखो यहाँ पे 5 बन रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे 5 बन रहा है, यानी कि ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये ऊपर y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हर ग्राफ में यही सेम चीज़ है, x वैल्यूज़ एंड दी y वैल्यूज़, दीज आर दी y वैल्यूज़। सो सी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, सो अगेन यहाँ पे दिस इज 5 एंड दिस इज 5, सो 5 एंड 5 करेक्ट है। देन यहाँ पे आते हैं, सो ये 5 है आपका और ये 5 है आपका, है ना। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट, यानी कि x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब एक और वैल्यू लेके चलते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन अभी सही आ रहे हैं, सो वी हैव टू चेक मोर। सो x इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू -5, तब भी आपका एक्स वाई इज इक्वल्स टू 25 आएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। x इज इक्वल्स टू -5 मीन्स यानी कि अब हम x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू पे y भी नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेगेटिव वैल्यू दैट इज -5, तो ये -5 तो है बट y जो आपका आ रहा है दैट इज +5 +5, है ना। यहाँ पे y आपका नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि ये ग्राफ बनना ही नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ नहीं बनेगा, आपका नीचे बनेगा। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट सी में आता है, सी में वही चीज़ सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आपका नेगेटिव x पे नेगेटिव y आना चाहिए, यानी कि अगर हम देखेंगे सो ये आपका ऐसे कुछ बन रहा है, ये देखो -5 पे -5 x की वैल्यू -5 पे y आपका -5 आना चाहिए, राइट। सो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में -5 है ही नहीं, मतलब नेगेटिव x की वैल्यूज़ नहीं दिया है, तो इट इज़ करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में भी आपका नेगेटिव y की वैल्यू नहीं दिया है, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाता है वो ए, सी एंड डी हो जाता है। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस वन, which of the following rocking chairs will not topple while rocking 15 degrees, right? Toppling means क्या होता है, to go back side। for example अगर इस rocking chair पे कोई person बैठेगा, right, so वो unbalanced position में आके वो पीछे की तरफ चला जाए, right, so that is known as the toppling। So which of the following rocking chairs will not topple while rocking 15 degrees? So for this to not to topple,
there should be balance. So how we can create balance? For example, a person is going to sit on these 4 chairs. सो सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, राइट, सेंटर पे आना चाहिए. सो अगर हम देखेंगे तो ये सेंटर जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पे पर्सन की बॉडी का सेंटर ऑफ मास आना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इसको हम देखेंगे बी ऑप्शन में तो वो यहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, एंड इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स. इस जो आर्क बना हुआ है उसके सेंटर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइन. सो 4 ऑप्शंस में अगर आप कंपेयर करो, इफ द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग, इफ द पर्सन इज सिटिंग, राइट, सो उसका जो मेजर पोर्शन है बॉडी मास वो पीछे की तरफ है, राइट. सो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, राइट. सेंटर ऑफ मास जैसे हमारा बेली बटन पे होता है, सो यहाँ पे होगा. सो अगर थोड़ा सा भी ये पीछे जाएगा सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द बैलेंस. यहाँ पे बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा. आपको जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, है ना. जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आना चाहिए, राइट. ऑल्सो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, सो उसको रोक नहीं पाएगा ये पीछे जाने पे, राइट. तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया. बॉडी का जो ये है सेंटर ऑफ मास है पीछे की तरफ जा रहा है. बॉडी अगर यहाँ पे है, राइट, सो इसका सेंटर ऑफ मास इसके यहाँ पे लाइन पे लाई करेगा. सो बी इज करेक्ट. अगेन सी के साथ भी यही है. आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पे लाई करेगा तो सी इज करेक्ट. अगेन इसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी. इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि इसका अगेन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, लाइन से दूर है. सो डी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है. सो ये आपका कुछ यू कैन से फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. कॉमन सेंस भी आप बोल सकते हो. थोड़ा आपको फिगर्स को कंपेयर करना है, सारे ऑप्शंस को देखना है, एंड देन यू कैन गेट द आंसर. ऑलराइट. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल बी अपलोडिंग सून. जो बाकी के क्वेश्चंस MSQ बचे हुए हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट अपलोडिंग द UC 2022 पेपर्स. ऑलराइट. ओके.